Once again, welcome to all of you in Dalton classes. Today we will discuss the lecture number 9. In this lecture, we will do balancing of chemical equation. So let's start the lecture. So first of all, आपको पता होना चाहिए what is a chemical equation. So what is a chemical equation? The representation of a chemical change in terms of symbols and formulae of a substance involved in it. कि जो भी कोई केमिकल चेंज है जब उसको हम किसी सिंबल्स या फॉर्मूलाज के अंदर लिखते हैं, जो उनके अंदर सब्सटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस. ओके, केमिकल चेंजेस क्या आते हैं इनके बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं. चेंजेस व्हिच आर इरिवर्सिबल इन नेचर लाइक सेटिंग ऑफ कार्ड. Okay, this is a chemical change like photosynthesis, make of glucose. That is also a chemical change. Okay, students. So, what is chemical equation? So we'll write here a brief representation of a chemical change of a chemical change in term of symbols and formulae. In term of symbols and formulae of substances involved in it. Of substances involved in it. So what is this? What is chemical equation? It is a representation of which representation of a chemical change, and that chemical change and that representation will represent in form of symbols and formulas. किसके सिंबल एंड फॉर्मूलेज? जो सब्सटेंस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे केमिकल चेंज को. दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. एंड यू मस्ट नो दैट chemical equation must obey law of conservation of mass. Okay, students. So any chemical equation that we write, it must obey law of conservation of mass. So what is law of conservation of mass? Mass of what happened? Masses of all the reactants on the reactant side must be equal to the masses of all the products on the product side.
तो यहाँ पर अगर रेक्टेंट साइड क्या होती है, प्रोडक्ट साइड क्या होती है, मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, and what does it mean masses of all reactants on the reactant side must be equal to the masses of all the products on the reactant side. That is the total number of each kind of atoms must be equal to the each kind of atoms before and after the reaction. ठीक है, कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच काइंड दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दे मस्ट बी इक्वल. फॉर एग्जांपल, जहां मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको चीजें जो है वो अंडरस्टूड हो जाएंगी. एग्जांपल, I took a very simple example like magnesium burn in presence of ribbon. For example, I write here magnesium burn in presence of oxygen and gives magnesium oxide. Okay, now I am trying to write this word equation into chemical equation. So I write about what is a chemical equation. Chemical equation is nothing but it is just a representation of a chemical chain. जो भी chemical change है उनको हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज की टर्म में लिखते हैं. लाइक ये है आपके केमिकल चेन, मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको हम क्या करेंगे, अब रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में. अभी ये वर्ड की नोटेशन में है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन है. केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इन सभी का जो मैंने अभी लिखा है इनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिखूंगा. लाइक मैग्नीशियम इज Mg, लिख दिया सिंबल मैग्नीशियम का. साथ में हम उनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. लाइक मैग्नीशियम इज सॉलिड, मैंने लिख दिया एस ब्रैकेट में सॉलिड. प्लस क्या लिखा, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज O2, ऑक्सीजन इज अ गैस, सो आई राइट हियर ब्रैकेट में G. S and G they tell the physical nature, physical state of the reactants. Okay, after reacting magnesium with oxygen it will give magnesium oxide. तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. ओके, ये कैसे बना मैं यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको. ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा. लाइक मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की क्या है -2. क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाएगा Mg2O2. 2 के साथ 2 कैंसिल, व्हाट इट गिव MgO. तो MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये यहाँ पर +2 और -2 कैसे है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सारी बेसिक थिंग्स हैं. मे बी आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ी होंगी. नहीं आती फिर भी आई विल मेड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दीज थिंग्स, फॉर दीज बेसिक्स. ओके, अभी मैंने यहाँ पर लिख ली, जो मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी जिसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया. केमिकल इक्वेशन इज नथिंग जस्ट रिप्रेजेंट ऑफ अ केमिकल चेन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज. जो हमारे पास दिए हैं सब्सटेंस, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है किसी भी वर्ड इक्वेशन को, वो कहलाएगी उसकी केमिकल इक्वेशन. ठीक है फिर, तो जो सब्सटेंस हम शुरू में लेते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट है.
और सब्सटेंस मिक्स होने के बाद जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पहले वालों से, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो, ये एरो डाला बीच में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी साइड है ये, दिस इज राइट हैंड साइड, और एरो के राइट लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड जो साइड है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। ओके, अभी मैंने ये सेकंड यहां पे लिखा कि केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ऑल द रेक्टेंट्स ऑन द रेक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द masses of the all the product on the product side। तो यहाँ करेंगे ना masses of all the रेक्टेंट साइड जितने भी रेक्टेंट है उनका मास इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट के मास के इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम रेक्टेंट साइड पे मस्ट बी इक्वल टू द ईच काइंड ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल आने चाहिए शुरू और बाद में। ठीक है, अगर नहीं शुरू में तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वे नहीं कर रहा, तो उसको वे कराने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे व्हाट डज वी कॉल, दैट इक्वेशन वी कॉल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी ये बैलेंस नहीं है, क्यों, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं mg लेफ्ट हैंड साइड मींस एरो से लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं mg, इसके कुछ लिखा हुआ इट मींस mg इज 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड चले जाता हूं मैं, इस साइड mg कितने हैं, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है यहाँ पर, तो mg इज 1 हियर आल्सो। mg तो दोनों साइड इक्वल है, mg के एटम दोनों साइड 1 1 है। अब दूसरा एटम हमारे पास ऑक्सीजन, रेक्टेंट साइड एरो के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं वो लिखा हुआ है, उस साइड देखो ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इट इज 1। तो अब देखें इसको, तो ये इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे तो उनके मासेस भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लाइक mg तो यहाँ 1 है, इस साइड भी mg 1 है, इस साइड ऑक्सीजन 2 है, बट इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रही। तो जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती उस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो ये है आपकी एक स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस इक्वेशन को या किसी और इक्वेशन को जो कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो उसको उसके अंदर ओबे कराना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे ओबे कराएंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल कराएंगे, और इन चीज को करना, इसको करना, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल करवाने या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कराना किसी भी केमिकल इक्वेशन में, आफ्टर डूइंग दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड, ऑन रेक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड इक्वल करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए 3 मेथड्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, नाउ आई राइट मेथड्स टू बैलेंस a chemical equation। Okay, so how will you balance a chemical equation? There are different methods to balance a chemical equation. We will do the 3 methods. Number 1 is hit and trial method.
Number 2 is oxidation number method. Number 3 is ion electron method. Okay students, so first method, hit and trial method, it is in your lesson number 1 or chapter number 1, which is basic concept of chemistry. These two methods, oxidation number method and ion electron method, these two methods are in chapter redox reactions that we will do later. Okay, so now firstly we will discuss this method, hit and trial method. Okay, so there are some rules which are used while balancing a chemical equation by the use of hit and trial method. So now we will do that rules. Now I am writing hit and trial method. What are those rules? It involves the following steps. Okay, it has many steps, but I will write the only necessary one. First one is write the symbols and formulae of the reactants and the products of the reactants and the products in the form of a skeleton equation, in the form of skeleton equation. कुछ नहीं है, पहले जो आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको जैसे है वैसे की वैसे लिख देना है. फर्स्ट स्टेप ये. सेकंड स्टेप इज select the formulae containing maximum number of atoms, containing maximum number of atoms, and start the process of balancing, and start the process of balancing. Okay friends, now step number 3. Atoms of elementary gases
are balanced last of all, are balanced last of all, मीन्स कि गैसेस एटम्स को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है. स्टेप नंबर 4, once all the atoms are balanced, then verify it again. So these are the 4 steps which are used in hit and trial method while balancing a chemical equation. Okay, if you want to balance any skeleton equation, what is a skeleton equation? Chemical equation in which number of atoms of each kind not equal to the number of atoms of each kind on the product side. That equation is called skeleton equation. And we have several methods to balance a skeleton equation, like hit and trial method, oxidation number method. Third one is ion electron method. The first method is in your chapter 1, some basic concepts of chemistry. These two ones are in the chapter redox reactions. Now we will do hit and trial method. There are 4 steps in a hit and trial method. First method is जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसको जैसे है वैसे लिख दो. सेकंड मेथड, आपने वो फार्मूला चूज करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो. ठीक है, उसको देख के आपने उसके कोई भी उस फार्मूले के कोई भी एटम को आपने बैलेंस करना स्टार्ट कर देना है. कौन सा फार्मूला? जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो वो चूज करना है. फिर उस मैक्सिमम नंबर एटम वाले फार्मूले में से कोई भी एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करना है. वो बैलेंस कैसे करना है ना, वी विल डू इट, अभी करेंगे. उसके बाद क्या करना है, आपने जो एलिमेंट्री गैसेस होंगी उनको सबसे बाद में करना है बैलेंस. एक बार जब आपके पास सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं तो उसको वेरीफाई कर लेना, दोबारा के बाद चेक कर लेना. ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स. अभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इक्वेशन इज Fe, what is Fe? Fe is iron plus H2O. What is H2O? It is water. Water is called universal solvent also, and it will form Fe3O4. Okay students, how Fe3O4, how it will write? It is the association of two compounds FeO and Fe2O3. ठीक है, and this is collectively called written as Fe3O4. So plus second is H2. So this is your skeleton equation. इसमें number of atoms equal नहीं, आप चेक कर सकते हो. ऐसा आपने एग्जाम में नहीं करना जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. मैं दोनों साइड लिख रहा हूं इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? ऑलवेज इट इज रेक्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कौन सी होती है? इट इज प्रोडक्ट साइड. ओके, नाउ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, नंबर 1, जो भी यहां पर एलिमेंट्री फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको आपने एटॉमिक फॉर्म में लिखना है. ठीक है, लाइक इन दिस इक्वेशन ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये आपका एलिमेंट्री फॉर्म में है H2. तो H2 को हम एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस ये 2 आगे ले हम
ये बन गई इसकी एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। H2 मीन्स 2 एटम्स है, इसको आगे लिख लिया। अभी क्या करेंगे, तो पहले चेक करते हैं कितने कितने एटम्स हैं हर साइड, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिए, एक आपके पास आयरन है, एक पास आपके पास ऑक्सीजन है, एक आपके पास हाइड्रोजन है। ये दोनों साइड चेक करते हैं हम कितने कितने हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट बैलेंस दिस इक्वेशन। This is very basic thing that we also read in chapter in class 10 also, but however, so like Fe is 1 on right hand side, product side सारे चेक करना है, product side 3, oxygen here nothing is right here, so it is 1, product side Fe oxygen is 4, right hand side H is 2, product side H is also 2. So let's start this balancing to this chemical equation. Now I have completed first step. जो भी आपका एलिमेंट्री फॉर्म में पड़ा हुआ है, चाहे रेक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, उसको मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिख लिया है। इस पूरी रिएक्शन के अंदर ओनली H2 इज इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड में स्केलेटन इक्वेशन को लिखने के बाद कोई भी आपका कंपाउंड, चाहे वो रेक्टेंट कोई भी आपका, चाहे वो रेक्टेंट है चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपका एलिमेंट्री स्टेट में पड़ा हुआ है आपका रेक्टेंट या प्रोडक्ट, उसको पहले एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। लाइक हाइड्रोजन इज एलिमेंट्री फॉर्म, H2 इज एलिमेंट्री फॉर्म, इसको कन्वर्ट किया इसके एटॉमिक फॉर्म में, इसके 2 एटम्स हैं, इसको आगे लिख लिए। ओके, so now in the second step, step number 2, what we will do, actually now first of all select that species which has maximum number of atoms. Like if we look on the right hand side and we look on the product side, Fe3O4, it is that molecule in which number of atoms are maximum. Like there are 3F and 4O, total number of atoms here it is 7, in this only 1, in this 2 1 3, in this only 2, ठीक है। in first of all write skeleton equation. In step number 2 I'll write like it here, इसको मानते हैं step number 1, okay, this is step number 2. So in step number 2 what we'll do, you have to just write the elementary form in the atomic form and select which rectangle or product has maximum number of atoms. Like यहाँ मैंने देखा only 1 atom, इसमें 3 एटम है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। 7 कैसे, 3F है और 4 ऑक्सीजन है, 4 + 3 7, ठीक है। ये डिसाइड करने के बाद आपने उस कंपाउंड को बैलेंस करना स्टार्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, और वो ये वाला स्पीशीज आपका Fe3O4। अब इसमें से आपने किसको बैलेंस करना स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग दैट एटम विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ओके। सो स्टार्ट बैलेंसिंग, okay. So in this compound, now I will rub it. So हमने इसको बैलेंस करना भी स्टार्ट करना है, इसके एटम्स को, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह के एटम है, 3 आयरन है Fe और 4 ऑक्सीजन है। पहले तो सबसे ज़्यादा एटम वाला स्पीशीज चूज करो, चाहे वो रेक्टेंट साइड है चाहे वो प्रोडक्ट साइड है। फिर उस स्पीशीज में आगे चेक करो किस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, फिर उसको बैलेंस करना स्टार्ट करो। लाइक Fe3O4 ऐसा स्पीशीज जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं पूरी रिएक्शन के अंदर, और Fe3O4 के अंदर किसके ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एटम है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है सबसे पहले हमने, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इस साइड भी हमने 4 कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग, एक्चुअली ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ स्पीशीज, यहाँ लिखते हैं कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 1 2 3 4 5, जो लिखने के बाद आपके पास नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए, कुछ एनीथिंग। इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। नथिंग इज सर्टन,
यू हैव टू ट्राई वंस अगेन एंड वंस अगेन, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट और एरर मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो लाइक हियर इज ऑक्सीजन इज 4, यहाँ भी हमने 4 करनी है, तो अब 4 कैसे करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बन जाए, तो यहाँ पर मैं आगे लिख दूंगा 4। सो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन बहुत रहती है जब बैलेंसिंग करते हैं। ऑलवेज कभी भी हम यहाँ नहीं लिखते बैलेंस करके, यहाँ नहीं लिखते, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द स्पीशीज, उसके आगे लिखना है, कुछ भी लिखना है, कोई भी नंबर लिखना है बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है, इट मीन्स यहाँ मैंने ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई की है, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, इसके बाद आपके पास कौन सा है एटम, Fe3। अब Fe को भी बैलेंस करना स्टार्ट करना, ओके स्टूडेंट्स। तो Fe को कैसे बैलेंस करेंगे हम, हेयर इज Fe3, यहाँ भी Fe3 करने हैं, तो यहाँ 1 है Fe, ठीक है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो यहाँ Fe3 हो गए, सो मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हो गए यहाँ पर 3। नाउ अभी आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया है जो बैलेंस नहीं है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, पहले इस साइड हाइड्रोजन 2 थे, इस साइड भी 2 थे, बट जब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो 4, और 1 थिंग आल्सो रिमेंबर इट, ठीक है, क्या कि जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो हम स्पीशीज की आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, वो सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सारे एटम के साथ मल्टीप्लाई होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट आप नहीं कर पाओगे। जैसे ये मैंने लिखा 4H2O, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, लुक 4 मल्टीप्लाई बाई H2 कॉमा 4 आल्सो मल्टीप्लाई बाई O। तो H2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। H कितने हो गए यहाँ पर 8, यहाँ ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया 4 ऑक्सीजन। तो 4H2O मीन्स हाउ मैनी H, 8H, ठीक है। सो रिमेंबर दिस आल्सो। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, यहाँ पर 4 लगाया मैंने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके 8 बन गए थे। अब इस साइड भी हाइड्रोजन को मैंने 8 करना है, तो कैसे करूँगा 8, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 2 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किस साथ करेंगे, इट विल मल्टीप्लाई बाय 4, ओके स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज स्टेप नंबर, एक्चुअली स्टेप को मैंने स्टेप 3 में करना था, अभी मैं इसमें कर देता हूँ इसको। तो क्या लिखूंगा 3Fe प्लस 4H2O, आपके पास क्या आया Fe3O4 प्लस 4 इंटू 2H, ठीक है। इस स्टेप नंबर 2 में यू जस्ट हैव चेक करना है किसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, बैलेंस नहीं करना उसको, और उसको नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री फॉर्म है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिख देना। ये मैंने लिख दिया जैसे समझाया मैंने अभी। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करूँगा मैं, जो आपके एटॉमिक फॉर्म है उसको दोबारा एलिमेंट्री फॉर्म में लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 4 2 से कितने हैं 8H आ गए, ओके। सो नाउ देयर इज 3Fe 4 प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस यहाँ लिखा 8H2, 8 एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं 2, मतलब मॉलिक्यूलर या एलिमेंट्री फॉर्म हम हाइड्रोजन की लिखते हैं H2। तो यहाँ पर 8H हैं, तो कितने एलिमेंट्री फॉर्म में कितने एटम आएंगे इसके पास 4 2 8, यहाँ लिख देंगे 4H2, ठीक है। फाइनली आपने ये बैलेंस कर लिए इक्वेशन। बैलेंस करने के बाद आपने इसको एक और वेरीफाई कर लेना है कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है कि नहीं। कर लेते हैं वेरीफाई, यानी हो Fe3 3Fe, इस साइड भी 3Fe, ओके, दिस इज राइट। सेकेंड वन इज H को देखते हैं, H की यहाँ 2 लगा हुआ, आगे 4 लगाया, 4 2 8, ठीक है। इस साइड भी 2 लगा हुआ, 4 2 8 इज, यहाँ भी कर देता हूँ मैं 4 2 8। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के आगे 1 है, कुछ नहीं होता 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 4 1 4, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यस। इस साइड ऑलरेडी 4 है, यस, इट इज बैलेंस्ड। सो
this equation finally get balanced. Okay, and we did it with the help of hit and trial method, which is also called hit or error method. So in this method nothing is certain, you have to try again and again, and finally you will get an chemical equation in which all the number of atoms of each kind on the reactant side as well as on the product side, they will become equal. Okay students, next जो आपका method है to balance a chemical equation, it is called oxidation number method. And third one is ion electron method. So friends, these two methods I will discuss with you tomorrow. तो आज हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है इक्वेशन को बैलेंस करने का, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. तो दिस इज only for today class. I hope things are clear to you, and thanks to all of you for watching this lecture, and please comment for today lecture. Thanks.